Hello, students and friends. Welcome to VMC in association with Doubtnut. मेरा नाम सौरभ वार्ष्ण है और हम आज की मास्टर क्लास में बात करेंगे गैसेस स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक्स की इम्पॉर्टेंट चैप्टर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड यदि हम बात करें वेटेज की तो जेई में वेटेज जेई मेन में करीब करीब 2 क्वेश्चन और जे एडवांस में इट कैन गो अप टू 3 to 4 क्वेश्चंस सो इम्पॉर्टेंट है राइट एंड यदि मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूं तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज द केमिकल इंजीनियरिंग राइट सो जरा देखते हैं कि इसमें क्या क्या आ जाता है गैसेस स्टेट की यदि हम बात कर रहे हैं सो गैसेस स्टेट विल कंसिस्ट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस राइट द thermodynamics which includes processes thermodynamic processes molar specific heat Carnot engine and cycle. These are the major topics of the gaseous state and thermodynamics. So इन पे based हम कुछ challenging problems आज discuss करते हैं, right? So let's start our today's session. हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है a mixture of n moles of nitrogen and 1 mole of hydrogen is kept in a container at a room temperature. The ratio of root mean square velocities of hydrogen and nitrogen molecules is. So यदि हम concept की बात करेंगे, so the concept is nothing but VRMS is a root of 3 RT by M. Correct. And if you look at the concept or the relation, it does not have number of moles. By capital R is gas constant and capital T is the absolute temperature and capital M is the molar mass. तो यदि हम velocity root mean square velocity of hydrogen की बात करते हैं, so that should be what? It will be root of 3 RT upon molar mass of hydrogen. एंड यदि हमने VRMS ऑफ नाइट्रोजन की बात की एंड इफ वी डू डिवीजन करेक्ट so we can write this as root of 3 RT by gas constant is same for both and temperature is room temperature for both, so then 3 RT and 3 RT is cancel. So we'll have molar mass of nitrogen upon molar mass of hydrogen का square root. So यदि हमने यहाँ पे VRMS of H2 is to VRMS of N2 की बात की, so it will become root 14. And if you look at the option, so option is going to be A. करेक्ट. कंफ्यूजन पॉइंट जो है वो यहाँ इस क्वेश्चन में ये आ जाता है कि दोनों गैसेस एक ही वेसल में रखे गए हैं बट मॉलिक्यूल्स तो अलग अलग हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के.
और जब मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं सो उनका मूवमेंट, उनकी स्पीड भी डिफरेंट होगी एंड corresponding to their temperatures and molar mass होगी. So it hardly matters हमने एक ही जगह पे रखा है या अलग अलग रखा है, राइट? अगला क्वेश्चन देखते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है एयर फिल्स इन अ रूम इन विंटर एट 7 डिग्री सेल्सियस. विंटर में टेम्परेचर कम हो जाता है एंड इन समर्स एट 37 डिग्री सेल्सियस. If the pressure is same in winter and summer, the ratio of the weight of the air filled in winter and that in summer is, by pressure same है, so to keep the pressure same, in case of the winter the density will be little higher, right? And in case of the summer it will be slightly lower because molecules will be moving faster, and molecules यदि faster move कर रहे हैं so will exert the same pressure as the more molecules at lower temperature, right? So that is a funda. अब solve कैसे करें? Visualization तो आ गया. So हम assuming air to be ideal by ideal gas equation. So pressure तो सेम है दोनों में और वॉल्यूम ऑफ रूम भी सेम होगा. मोलर मास ऑफ द एयर इज आल्सो सेम. सो हम यहां पे कह सकते हैं पी वी कैपिटल एम आर सेम इन विंटर एंड समर. सो हम ये कह सकते हैं दैट m into t should be constant for the given case where m is the mass or weight of the air. So then it should be m into winter, temperature in winter, summer and temperature in summer. तो क्या हो जाएगा? Correct. So we will be getting mass in winter upon mass in summer or weight in winter upon weight in summer, and this will be close to 1.1, 1 plus 30 upon 280, which is nothing but 0.1. So हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. करेक्ट. फंडा क्लियर. आगे बढ़ते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम ट्रैप्ड इन अ कैपिलरी ट्यूब by means of a mercury pellet is 5 centimeter at 30 degree Celsius. If the tube is heated uniformly to 80 degree Celsius, the new length of the air column is. तो जो हमारे सामने है हम ये कह सकते हैं कि भाई ये कुछ एयर फील्ड की हुई है ऐसे. सो हम ये कह सकते हैं कि जो मास ऑफ एयर है इस कंटेनर में, वो कैपिलरी ट्यूब में, वो तो फिक्स रहेगा, राइट? मास ऑफ द एयर तो चेंज नहीं होने वाला है. एंड वी कैन से दैट ये जो मरकरी पैलेट है, क्या हम ये कह सकते हैं इट इज गोइंग टू एक्सर्ट द कांस्टेंट प्रेशर एट द एयर कॉलम. क्यों? क्योंकि यहाँ पे यदि मैंने अज्यूम कर भी लिया दैट एटमॉस्फेयर प्रेशर है,
So atmospheric pressure and the pressure due to the weight of mercury pallet will always be the pressure at the air column. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं since pressure at any time pressure due to atmosphere and pressure due to weight of mercury pallet. So P constant हो गया and N is already constant. Correct. So V by D constant, Charles law. So then V by T में initially A into 5 centimeter भाई, यदि हमने मान लिया कि कैपिटल A is the area of the air column or the capillary tube, so initial temperature हमारा कितना है 30. So this will be 273 plus 30 is equals to A H centimeter area of cross section of tube. So हमें तो H चाहिए, so H हमारा कितना हो जाएगा, it will become and solve करने पे this will come out to be 5.83 सेंटीमीटर. सो मेरा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए. करेक्ट, चार्ल्स लॉ पे बेस्ड. अगला क्वेश्चन देखते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ गैस फिल्ड इन अ क्लोज्ड वेसल इज हीटेड थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. हमने एक क्लोज्ड वेसल मतलब none of the wall or the bottom or the top in the form of the piston can move. तो मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम फिक्स हो गया. हीटेड थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस मतलब हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैस के प्रेशर को, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करा दिया, सो दैट द प्रेशर इंक्रीजेस बाय 0.4%. तो हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया 1 डिग्री सेल्सियस से, या 1 केल्विन भी कह सकते हैं, तो उसका जो प्रेशर है वो 0.4% से इंक्रीज हो गया. हमसे पूछ रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर कितना था, राइट तो हम ये कह सकते हैं at constant volume P by T कांस्टेंट है. सो इसका मतलब dP is equals to some constant into temperature.
change in temperature. So then this will be P is equals to constant, इसे हमने 1 कह दिया, इसे हमने 2 कह दिया और 2 को 1 से डिवाइड कर दिया. Certainly integrate नहीं करना है हमको, right? So constant and constant cancel. Correct. So अब यदि हमने यहाँ पे रियलाइज किया, so dP is differential change in pressure which can be taken as a very small change, right, divided by original pressure. So that is fractional change in pressure, right, and that should be nothing but, in this case we can take 0.4 upon 100, and dt is nothing but 1 Kelvin. So this will be T. तो हमें टेम्परेचर जो कि इनिशियली या ओरिजिनली होना चाहिए, so we'll get temperature as 250 Kelvin, right? सिंपल सा हमें आंसर मिल जाता है. एंड यदि हमने प्रॉपर आइडियल गैस इक्वेशन वाला फॉर्म लिया, सो देन इट इज गोइंग टू बी लेंदी. सो द अप्रोच हमारी जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, क्योंकि 0.4% एंड कैलकुलेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक. सो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए. करेक्ट. अगला क्वेश्चन देखते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 mole of ideal gas goes through a process P is equals to 2V square upon 1 plus V square. तो हमको एक प्रोसेस इक्वेशन दी हुई है. Then change in temperature of gas when volume changes from V equal to 1 meter cube to 2 meter cube. तो यदि हमने यहाँ पे करेक्ट, तो सबसे पहले तो at V is equals to, so इनिशियल प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, 2 into 1 square upon 1 plus 1 square. So this will come 1 unit, and यदि हमने टू मीटर क्यूब की बात की, तो जो फाइनल प्रेशर है सो दिस विल कम आउट टू बी 8/5. हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन को तो हम किसी भी दो स्टेट्स के बीच में अप्लाई कर सकते हैं. तो इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल हमको 1 मोल दिए हुए हैं, राइट. एंड यदि मेरे को इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर पता चल जाए तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके मैं इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर का डिफरेंस निकाल सकता हूँ. सो जरा अप्लाई करते हैं. सो ये रहा 1 और ये रहा 2 में से 1 को यदि हमने माइनस किया,
सो nRTF माइनस का TI शुड बी इक्वल टू 8/5 into 2 minus 1 into 1. So that will be 16/5 माइनस का 1 और n की वैल्यू हमको 1 मोल दी हुई है एंड दिस बिकम्स चेंज इन टेम्परेचर. सो जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर है दैट विल बिकम 1/r 11/5. सो हमारा आंसर आ गया. एंड देन व्हाट शुड बी द आंसर? ऑप्शन बी करेक्ट. सो आंसर हो गया हमारा. इनिशियली हमको क्वेश्चन पढ़ने पर ऐसा लग रहा है दैट क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी बिकॉज बड़ी अनफेमिलियर सी इक्वेशन हमको दी हुई है. Pressure is equals to 2v square upon 1 plus v square. Never seen this kind of expression, isn't it? But hold your nerve and think about the question. हमको initial volume, final volume दे रहा है and we can always apply ideal gas equation at any of the state and then we can find what is the temperature change or temperature difference, right? So अगले question को देखते हैं जरा. हमारा अगला क्वेश्चन कुछ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Ideal monoatomic gas is taken through process such that dq is 3 times du, right? So हमसे पूछ रहा है the molar heat capacity for the process is, right? तो the given equation is but for any process मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहा है. By differential heat supplied is nothing but number of moles into C process, the molar specific heat of the gas in that process into differential change in the temperature, and du does not depend on the process, so that is always NCV dt. So यदि हमने यहाँ पे substitute किया, so we'll get NC process dt should be equal to 3 times. So we should be getting C process as 3 times CV. Now what should be CV for the monoatomic gas? If you look at, so it is monoatomic gas matlab 3/2 R. So we'll get 9/2 R. So the answer should be 4.5 times R. And if you look at the option, there is an option B. So that becomes our answer. Correct. अगला क्वेश्चन देखते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है अ गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली till its pressure becomes 27 times its initial pressure, right? Calculate the final temperature if the initial temperature is 27 degrees Celsius. गामा की वैल्यू हमको 3/2 दी हुई है. इसका मतलब हमसे जो कह रहा है जरा एक बार देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है. फाइनल प्रेशर इज 27 टाइम्स इनिशियल प्रेशर. गामा की वैल्यू 3/2 है एंड इनिशियल टेम्परेचर हमको दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस विच इज 300 केल्विन. करेक्ट. सो यदि हमने यहाँ पे यूज किया और साथ ही साथ जो प्रोसेस दे रहा है वो क्या है? एडियाबेटिक. सो यदि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमने इक्वेशन यूज की, सो वी नो दैट
Adiabatic process has got p to the power 1 minus gamma into t to the power gamma is equals to constant. So then pi हमें तो फाइनल टेम्परेचर चाहिए, सो यदि हमने TF लिखा तो वी कैन राइट इट एज करेक्ट, TF की पावर गामा को एक साइड रख के बाकी दूसरे साइड, और फिर 1 बाई गामा पावर हमने ले लिया. So then we will have, this is 300 and this should be nothing but 1 by 27 and this is 1 minus 3 by 2 upon 3 by 2. So थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हमको. This is 1 by 3 की पावर 3 and this will be minus का 1 by 2 upon 3 by 2. So we'll get the final temperature as 900 Kelvin, right? Look at the option. Yes, there is a option C. करेक्ट. अगला क्वेश्चन देखते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस विद एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा इज इक्वल्स टू 4/3 इज वेरीड अकॉर्डिंग टू लॉ v इज इक्वल्स टू 1/t. मतलब हमसे कह रहा है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है जिसके लिए गामा की वैल्यू 4/3 है, उसके वॉल्यूम को 1/t मतलब टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखते हुए हमने उसको चेंज किया. Find the amount of heat obtained by the gas in this process if the gas temperatures are increased by 100 Kelvin. मतलब हमें ये पूछ रहा है कि गैस ने कितनी हीट अब्सॉर्ब की होगी यदि गैस का टेम्परेचर 100 केल्विन से इंक्रीज होता है तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए. वी आर नॉट गिवन एनी नोन प्रोसेस, तो हमें पहले उस प्रोसेस के लिए सी प्रोसेस सोचना चाहिए. सो यदि हमने प्रोसेस इक्वेशन लिखी, करेक्ट. सो आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके करेक्ट. कांस्टेंट है, सो कंपेयरिंग with polytropic process P v की पावर x equal to constant will be getting x equal to 2. And now for polytropic process C process is Cv plus R upon
1 माइनस एक्स, एंड गैस हमको दी हुई है 4/3, मतलब पॉलीट्रॉपिक होगी, सो दिस विल बी 3R, so we'll have what? So जो हीट सप्लाइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टू 200R, 1 मोल दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। फंडा क्लियर? क्या किया हमने? हमें कोई अननोन प्रोसेस दिया हुआ था, तो हम पहले हमने सी प्रोसेस सोचा यूजिंग पॉलीटॉपिक प्रोसेस, एंड देन सी प्रोसेस निकालने के बाद हीट सप्लाइड, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन द टू टेम्परेचर 300 केल्विन एंड 600 केल्विन। कहने का मतलब जो हमारा सिंक है, करेक्ट। सो यहां से हमने कुछ Q2 अमाउंट ऑफ हीट ली, और उसको लेने के लिए हमने कुछ W वर्क किया, एंड देन Q1 हीट हमने सोर्स को प्रोवाइड करा दी। करेक्ट। सो द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बी, and by conservation of energy we can say that W is nothing but what? Q1 minus Q2. So this can be written as 1 upon Q1 upon Q2 minus 1, and then since कार्नोट रेफ्रिजरेटर है, सो हमारा COP आ जाता है। करेक्ट, and then answer is nothing but 1, which is option A. अगला क्वेश्चन देख, हमारा अगला क्वेश्चन है फिगर शोज अ कंटेनर हैविंग adiabatic walls and a freely movable separator which is highly conducting. Now this is important line, walls are adiabatic, मतलब there cannot be any heat exchange possible through the walls, but separator highly conducting है, मतलब we should assume that conductor जो separator है, it will not take any time to transfer any amount of heat. Are you getting that? It simply means that the temperature at both the sides has to be same. Correct? Temperature
डिफरेंट नहीं हो सकता है बिकॉज हीट सप्लाई हीट ट्रांसफर होने में कोई भी टाइम नहीं लग रहा है। आगे हमसे कह रहा है द सेपरेटेड डिवाइड्स द सिलेंडर इन टू इक्वल पार्ट्स ए एंड बी each containing 2 moles of ideal diatomic gas at temperature 300 Kelvin. Now a heater is switched on in part A. Find the heat supplied in kilojoule by heater till the pressure in A is double. सोचने वाली बात यह है कि हमारा जो टेम्परेचर है दोनों साइड पे वो सेम रहना चाहिए एट ऑल टाइम्स बिकॉज ऑफ द सेपरेटर हाईली कंडक्टिंग सेपरेटर। तो यदि प्रेशर डबल हो रहा है तो प्रेशर दोनों साइड डबल होगा, क्योंकि ओवरऑल जो कंटेनर है हैविंग बोथ द पार्ट्स उसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, टोटल वॉल्यूम विल रिमेन 2v0। टोटल वॉल्यूम 2v0 है, प्रेशर डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी डबल होना चाहिए। आर यू गेटिंग दैट? सो यदि हमसे कह रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर is T naught 300 Kelvin. Since separator has to be same, hence if pressure is doubled, temperature is also doubled, as total volume remains 2v naught and mass of gas is also 4 moles constant. फटा क्लियर? तो हम कह सकते हैं जो हीट सप्लाइड होगी should be equal to the change in kinetic energy of the gas. So this should be nothing but n times what should be the kinetic energy per mole? Diatomic gas है, so it should be 5/2 RTF correct? And we were supposed to find out in kilojoule, so हमारा आंसर हो जाता है 25 किलोजूल। फंडा क्लियर? वन मोर क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ पीवी डायग्राम ऑफ अ डायटोमिक गैस इज प्लॉटेड, तो डायटोमिक गैस है तो 7/5 हो जाएगा गामा। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसका मतलब P इज इक्वल्स टू अल्फा V। The molar heat capacity of the gas in the process is I into R, where I is an integer. Find the value of I. So we can say that PV की power -1 is alpha. So then comparing with polytropic process equation, PV की power x equal to constant x की वैल्यू -1। सो जो हमारा C प्रोसेस है so we'll get 3R. सो I की वैल्यू हमें मिल जाती है 3। शुड बी द आंसर, करेक्ट। सो ये हो गया हमारा आंसर। फंडा क्लियर, राइट। सो आज की हमारी मास्टर क्लास में बस इतना ही। अगली मास्टर क्लास में हम फिर गैसेस स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक्स में कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ और एप्लीकेशंस देखेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की, करेक्ट। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड गुड डे, गुड बाय।